Let's start. How many series are involved in the D block element? See here, involved in 3D series. This is called as the 3D series, 4D series, 5D series, and 6D series. Also here is called as the first transition element, second transition element, third transition element, and the फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट. ये इसको हम ऐसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 3D सीरीज. इस ऑल दिस ग्रुप आर द एलिमेंट इज कॉल्ड एज द 3D सीरीज. ये 3D सीरीज में इन्वॉल्व होंगे. इसको बोलेंगे हम 4D सीरीज. ऑल ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन अ 4D सीरीज. इसको बोलेंगे हम 5D सीरीज. ऑल ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन अ 5D सीरीज. इसको बोलेंगे हम 6D सीरीज. ऑल ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन अ 6D सीरीज. इसको बोलेंगे हम फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसको बोलेंगे हम फोर्थ ट्रांजिशन. सी दिस वीडियो. They are the 3D series, the 4D series, and the 5D series. The fourth series, the 6D series, which begins with actinin, is still incomplete. The first see here, the 5D series and the 6D series is incomplete of series here, because here the lanthanum and actinide is going on a block element is incomplete series. But यहाँ से जो start होता है 72 से 104 से ये all are the D block element. तो ये incomplete series यहाँ से 5D और 6D से incomplete series start होती है, क्योंकि ये वाला block इनका F block में चला गया है. Okay, but 3D 4D is all are the series of the D block element, 5D also और 6D also. but here थोड़ा सा incomplete series है. इसको बोलेंगे हम first transition, second transition, third transition and the fourth transition element. see the first series हम देखेंगे, third 3D series देखेंगे और first transition element देखेंगे. see transition series includes the elements from scandium to zinc. see here the 3D series is first transition element. see this here the 3D series, and here this is all are the group of element is first transition element. okay, तो हम देखेंगे कि ये 3D series कैसे हुआ. see the second transition series includes the elements from it. see here this is all are the 3D series. why it called as the 3D series? because the electronic configuration all scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc all are involved in a 3D electronic configuration, right? 3D में जो इसके इलेक्ट्रॉन बचते हैं 3D1, 3D2, 3D3, 3D5, 3D5. that's why it is called as the 3D series. अच्छे से नाम दिया पीरियड. और this is the first transition, मतलब पहली transition of the D block element की, है ना. so why it is called as 3D? because देखो 3D में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D, 3D2, 3D5, 3D5, 3D4, 6, 5 पे है, कोई 3 पे है, 5 फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10. और ये कहाँ पे इन्वॉल्व है? 3D में ही इन्वॉल्व है. और D का यहाँ पे खत्म हो गया 3D का, क्योंकि D में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? ओनली 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. उससे ऊपर रह सकते हैं नहीं, फिर नेक्स्ट सीरीज चालू होंगी हमारी, है ना. सो सी दिस ऑल आर द कंप्लीट. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज 3D सीरीज. सो यहाँ तक आपने देखा. हम देखेंगे अब इसका 3D पार्ट. so see here the electronic configuration chromium and the copper. chromium and the copper का this is हमारा 3D सीरीज हमने देखना है. this is हमारा 3D सीरीज. और 3D सीरीज में क्रोमियम और कॉपर का हमें देखना है. ये दोनों का हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करेंगे, क्रोमियम का एंड द कॉपर का. तो सी हियर हमने देखा. और ये इन्वॉल्व क्रोमियम और कॉपर विच सीरीज इज इन्वॉल्व द 3D सीरीज इन्वॉल्व. ओके, 3D सीरीज में इन्वॉल्व हो रहा है. समझ में आ रहा है कौन से सीरीज में? वाई इन्वॉल्व इन 3D सीरीज? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं? 3D में रहते हैं. ओके, सो सी हियर टेबल 8.2 से हमें समझ में आया कि कौन से इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग दैट द एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमिन Z एंड एटॉमिक नंबर. क्रोमिन का एटॉमिक नंबर कितना है? 24. डिफर फ्रॉम द ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन. तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. This can be explained on the basis of the concept of the additional stability associated with the completely filled half filled subshell. मतलब कंप्लीट फील है कि हाफ फील्ड है ना. डी में पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे नहीं, 24 ही है. तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज इज 3D1 - 10. मतलब यहाँ पे ओनली कितने कम इलेक्ट्रॉन लेंगे देन 4s2 विद द एक्सेप्शन ऑफ द क्रोमियम एंड
copper and 3d 4s orbital are close energy in order to the gain extra stability last electron instead of the occupy 4s orbital. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा हमारा, सी हियर है ना, क्रोमियम एंड कैमनीस का हम देख रहे हैं, सी हियर क्रोमियम का 4s से कनेक्टेड रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्बिटल 5 में हम 4s में इसके इलेक्ट्रॉन देंगे, जंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने बताया था आपको पी ब्लॉक में, तो एस इन्वॉल्व रहेगा इस सभी सीरीज में। यहाँ पे देखो 3d कंप्लीट तो नहीं है बट 4s इन्वॉल्व है, तो एस इन्वॉल्व ही रहेगा। जैसे पी के साथ एस इन्वॉल्व, हम पी कंप्लीट नहीं रख सकते, जैसे 1s2 2s2 2p आता ही है, वैसे 3d के साथ 4s आएगा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, हमारा वैकेंट शेल इलेक्ट्रॉन जंपिंग, मतलब यहाँ पे 3 नहीं रखेंगे, हमारे 2 शेल कहाँ पे रहेंगे, इनकम्प्लीट, कंप्लीट किसको करेंगे हम, एस ऑर्बिटल को। तो यहाँ पे देखो हमने 2 शेल यहाँ पे 4 होने चाहिए, तो डी के हम इन्वॉल्व करें किसको, 4s ऑर्बिटल को। तो हमेशा 4s ऑर्बिटल डी के साथ इन्वॉल्व रहेगा। देखो डी कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे 3d के पूरे 5 कर देते, नहीं 4s इन्वॉल्व है यहाँ पे। दिस इज द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। जैसे क्रोमियम का 3d5 एंड 4s1 हमेशा एस ऑर्बिटल ऑल मतलब p और d और f भी देखो तो एस ऑर्बिटल हमेशा उसमें इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्योरी के हिसाब से हर एक इसमें एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही इन्वॉल्व है 3d के साथ एस ऑर्बिटल। तो क्रोमियम हम देख रहे हैं तो 3d5 4s1 आएगा। देन कॉपर का देख रहे हो 3d10 कंप्लीटेड और यहाँ पे 4s1, बट हम कॉपर का 1 माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3d9 एंड 4s2 भी कर सकते हैं। जंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमारे हाथ में, हंट्स रूल अगर हमने अप्लाई किया तो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम करते हैं, तो वहाँ पे बन जाएगा 3d9 और 4s2। ओके, तो सी हियर कि हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया कि कॉपर का 3d10 एंड 4s1 कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज अगर हमारे पॉसिबिलिटी हम जंपिंग और इसको कंप्लीट कर दे, ये भी हो सकता है। यहाँ पे आ गया 3d5 का क्रोमियम का और 4s1। तो दिस इज ऑल, ये हमारा स्कैंडियम सीरीज का द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3d सीरीज। देखो 3d सीरीज का स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर 22 23 24 25 26 30 तक है। और ये देखो 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s2 3d4 4s2 सब ने इसको 4s2 कर दिया। ओके, तो देखो क्रोमियम के टाइम इसका जिंक हमारा क्रोमियम 3d4 4s2, यहाँ पे क्या किया था उन्होंने 3d5 एंड 4s1। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो 3d5 4s2। सी हियर क्या आएगा, यहाँ पे क्रोमियम का 3d4 कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन कहा गया, यहाँ पे जाके जंप कर लिया उसने, तो 3d5 4s2 बन गया। राइट, यहाँ पे कॉपर का देखो क्या था 3d10 एंड 4s1 था। राइट, सी हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 3d10 एंड 4s1, बट अब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब एस को क्या कर दिया, एस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एस को कंप्लीट कर दिया, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जंपिंग ग्राउंड स्टेट टू एक्साइड, ऐसे ही किया उन्होंने। तो सी हियर उसने जंप करने के बाद यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया 3d9 एंड 4s2। इस तरह से उस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। हमें ज़्यादातर देखना है कि हमारा आउटर शेल एस को हमें स्टेबल करना है, तो इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी एस को स्टेबल कर लिया और इस तरह से इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक्सपेक्टेड मतलब ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एस ऑर्बिटल कंप्लीट हो, एक्सपेक्टेड करना हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रहेगा। बट ऑब्जर्व, जब ऑब्जर्व किया तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा, इस तरह से रहेगा। जैसे हमारा 3d10 एंड 4s1 था कॉपर का और क्रोमियम का 3d5 एंड 4s1 था, तो इस तरह से ये ऑब्जर्व होता है। बट एक्सपेक्टेड हमें क्या चाहिए, अगर हमें किसी एलिमेंट को स्टेबल करना है तो हमें ये वाला चाहिए, तो ये एक्सपेक्टेड है। और बट ऑब्जर्व कौन सा है, ये वाला है। अंडरस्टूड, आपको 3d सीरीज समझ में आ गया ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3d सीरीज। उसके बाद हम देखेंगे उसका सेकेंड सीरीज। ओके।